Good morning, dear students. Today we will start a new topic, that is breathing and exchange of gases. Simply, we can say respiration in animal. Right? So, what is respiration? All the living organism require energy. Right? And energy is produced by the oxidation of food. So this is food in the form of glucose. We take oxygen for oxidation and produce CO2, water and energy. So simply we can say respiration is biochemical process in which stepwise degradation or stepwise oxidation takes place and there is production of एनर्जी. राइट. सो आप यहां पर देखिए कि जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देयर इज वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ CO2. तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और CO2 प्रोड्यूस CO2 हमको बॉडी से बाहर निकालना है. राइट. सो सिंपली वी कैन डिफाइन एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल O2 with CO2 which is produced during oxidation of food inside the cell. This is called simple respiration. So हमको ये अंदर लेना है और ये बाहर निकालना है. This is called simple respiration. अब हम ये बात कर रहे हैं the types of respiration. The unicellular organism respire through different mechanism. Multicellular organism respire through different mechanism. So in unicellular organism mainly respiration is anaerobic, or in multicellular organism it is aerobic, mostly aerobic. So difference in anaerobic and aerobic means, see, anaerobic respiration does not require oxygen. So there is in this respiration there is no oxygen requirement, but aerobic respiration require oxygen. Similarly, in aerobic respiration CO2 may or may not produce. CO2 प्रोड्यूस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो CO2 मस्ट प्रोड्यूस. सिमिलरली, प्रोडक्शन ऑफ वाटर, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ वाटर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस होगा. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हाई लेवल पर होगा. एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट ग्लाइकोलाइसिस, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ओनली, बट एरोबिक रेस्पिरेशन पार्टली टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया. एग्जांपल, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और Krebs cycle are the example of aerobic respiration. Correct? And another type of respiration on the basis of organ which participate. फिर आप देखिए external respiration. External respiration means exchange of gases between environment and lungs. So lungs और environment के बीच में जो gases का exchange है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. कैसे होगा? लंग्स से एनवायरमेंट में क्या जाएगी? CO2, और एनवायरमेंट से लंग्स में क्या जाएगी? O2. तो एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बिटवीन लंग्स एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सिंपली ब्रीदिंग और वेंटिलेशन. एंड व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू. राइट? From blood to tissue, there is a transportation of exchange of O2 or CO2. This is called internal respiration. And third is cellular respiration. Respiration inside the cell. So, inside the cell means oxidation of glucose through glycolysis, ETS, Krebs cycles are the part of cellular respiration. So, there are three types of respiration. Now, we will discuss respiration in different animal.
So what is respiratory organ? So first we'll discuss the prerequisites of respiratory organ, कि कौन सा ऑर्गन रेस्पायर कर सकता है. किसी भी ऑर्गन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो फर्स्ट, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज. राइट. तो जो भी ऑर्गन रेस्पायर करना चाहता है उस ऑर्गन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए. द सरफेस शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. सरफेस पतली होनी चाहिए और उसमें से गैसेस का एक्सचेंज इजीली से हो सके, इसलिए वो थिन होनी चाहिए. और इट शुड बी मॉइस्ट, नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए. एंड थर्ड रिक्विजिट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड. उस ऑर्गन में फुल्ली ब्लड सप्लाई होना चाहिए ताकि जो भी गैस आया उसका ट्रांसपोर्टेशन हो. तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड. इसलिए वहां पर हाईली वेस्कुलराइज्ड वो ऑर्गन होना चाहिए. नाउ विल डिस्कस दैट इज respiration in different animal. Now types of respiratory organ in animal. The simplest type of respiration found in unicellular animal like amoeba. So through general body surface respiration takes place. So in animals में respiratory organ क्या हो गया? General body surface, because these are unicellular animal. So suppose this is amoeba, unicellular organ. तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इनमें होता है. तो यहां पर क्या होगा? एनवायरमेंटल या वाटर में जो O2 है वो डिफ्यूज हो जाएगी बॉडी में, और यहां पर जो CO2 होगी वो बाहर डिफ्यूज हो जाएगी. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? सिंपल जनरल बॉडी सरफेस. राइट. तो ये इन अमीबा, यू कैन से इन अमीबा और इन प्रोटोजोआ, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज जनरल बॉडी सरफेस. द नेक्स्ट इज इन पोरिफेरा. Right? Porifera, there is a water canal system. तो respiration takes place through water canal system. अलग से कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम है उसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा. तो आप देखिए यहां पर पोरिफेरन मींस परफोरेटेड बॉडी, बॉडी पर बहुत सारे पोर्स हैं. इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया. तो थ्रू ओस्टिया वाटर एंटर्स इन कैविटी, that is स्पंजोसील. तो there is कॉलर सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स, वो ऐसे मूव करती है. there is इनकरेंट कैनाल, तो वाटर अंदर की तरफ, ये सीरिया अंदर वाटर खींचते हैं. उसी वाटर के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन आएगा. उस डिजोल्व ऑक्सीजन को जो बॉडी सेल्स है वो यूज करेगी, और जब ये पानी स्पंजोसील से बाहर माउथ, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम के थ्रू जब बाहर निकलेगा, इसके साथ CO2 रिलीज हो जाएगी. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हुआ? थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम. इनकरेंट वाटर के साथ डिसोल्व ऑक्सीजन आएगी, और एक्स करंट वाटर जो होगा, जो पानी बाहर निकलेगा, उसमें प्रोड्यूस CO2 एलिमिनेट हो जाएगी. तो दिस इज थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा. नेक्स्ट इज इन इंसेक्ट. राइट. रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया. आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में जितने भी इंसेक्ट्स है. सो इंसेक्ट में देयर इज ए ट्रेकिया, सिंपल ट्यूब्यूलर, कार्टिलेजिनस काइटिन का बना ट्यूब्यूल्स है, और this mouth is called spiracle. So insect की बॉडी की लेटरल साइड में इनकी ओपनिंग है, डायरेक्टली ओपनिंग है एनवायरमेंट में, और देयर इज ए फिल्टर एपरेटस. जैसे हमारे नोस्ट्रिल में हेयर्स है, हमारे नाक में बाल है, वैसे इसकी ओपनिंग पर फिल्टर्स हैं, सिंपल फाइबर्स है, जो डस्ट पार्टिकल को अंदर एंट्री से रोकते हैं. तो दिस इज ट्रेकिया. Trachea divides, there is a branch trachea, and the terminal part of trachea is called tracheole. So this tracheole directly connected with body muscles. Insect की body की muscle से ये tracheoles directly connected है. Right? Spiracle body के बाद आप simply आप समझिए, suppose this is trachea, और ये body है insect की, ये जो mouth आप देख रहे हैं, this is called spiracle. तो this is spiracle. तो जब insect की body muscles डायलेट करती है या बॉडी जब रिलैक्स होती है ऐसे, तो इंस्पायरेशन होगा. एयर रश इन, फिल्टर्ड एयर रश इन डायरेक्टली टू मसल्स और बॉडी टिश्यू. व्हेन बॉडी कंप्रेस्ड, डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस करेगी, तो जब कंप्रेस करेगी तो प्रोड्यूस CO2 एक्सपायर हो जाएगी. सो इन इंसेक्ट और इन ट्रेकियल सिस्टम क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज है बिटवीन एनवायरमेंट एंड बॉडी टिश्यू. यहां पर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं है, क्योंकि इनमें सीधा कनेक्शन है.
इसीलिए जो इंसेक्ट हैं वो हाइपर एक्टिव हैं। आप मक्खी को पकड़ नहीं सकते, आपसे तेजी से भागेगी क्योंकि उसकी मसल्स हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई है बॉडी टिश्यू में, करेक्ट। हमारा पहले लंग्स में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर टिश्यू में जाएगा, यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए इंसेक्ट हाइपर एक्टिव रहते हैं। एंड द नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, दैट इज गिल्स। फिशेस में क्या होता है? गिल्स। तो आप देखिए गिल्स जो है ये इसका इनहेलेशन ऑफ वाटर है। तो फिश क्या करती है? गिल्स के थ्रू पानी अंदर सक करती है और पानी उसके लेटरल साइड से, जो लेटरल साइड में जो गिल्स हैं कवर्ड विथ ऑपरक्यूलम फिल्म है, दैट इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। यहां पर एक गिल्स है। तो यहां पर क्या होता है, जो वाटर जब एंटर करता है, दिस वाटर अंदर लेने के बाद माउथ क्लोज, पानी फिर यहां से बाहर निकलेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज वाटर मूवमेंट एंड दिस इज ब्लड सर्कुलेशन, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन गिल्स में ब्लड कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन। आप देखिए यहां पर जो पानी आ रहा है इसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, और यहां से जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लड देख रहे हैं, ये इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां से यू सर्कुलेट करेगा तो CO2 इसमें रिलीज हो जाएगी, और इसमें जो पानी के साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन आई है वो इसमें हो जाएगी। नाउ ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, रेड ब्लड हो गया। तो यहां पर गिल्स में यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन गिल्स। और कैसे होगा कि वाटर करंट का डायरेक्शन और ब्लड सर्कुलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो पानी बाहर निकलेगा वो जाते टाइम CO2 ले जाएगा और निकलने से पहले ब्लड को O2 दे जाएगा। ये सिंपल सर्कुलेशन इन फिशेस। नेक्स्ट इन एम्फीबियंस, फिशेस के बाद एम्फीबियंस। इन एम्फीबियंस respiration takes place through skin, that is called cutaneous respiration. Cutaneous respiration means skin के थ्रू respiration। तो आपने देखा होगा जो फ्रॉग है उसकी स्किन कैसी मॉइस्ट है, मॉइस्ट स्किन डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एंड बिकॉज उसकी जो स्किन है वो थिन है, और उसी थिन स्किन से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, और वहीं से डिफ्यूज हो जाएगी CO2 इन स्किन। सो वो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ our main topic is respiration in human. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowing to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. Human respiratory system starts from external layer. So ये देखिए आप, ये external layer opens into nasal cavity or nasal chamber. In nasal chamber these are the turbinal cartilage lined with ciliated mucus secreting membrane, that is called Snedderian membrane. So these are the turbinal cartilage in nasal chamber. There is a mucus secreting gland which keeps moist to the nasal chamber. So you can say this is air path, air external layer to nasal chamber to internal layer, or internal layer to
through larynx in glottis to trachea, right? And you can say this is pharynx. Pharynx is common area for the respiratory path and for the food path. Mouth, buccal cavity, and this is esophagus. So both the path cross each other. दोनों path, food path and respiratory path, दोनों एक दूसरे को यहां पे क्रॉस करते हैं. Hence this common area is called pharynx. You can see in respiratory system, ये larynx है, sound producing organ, right? This is epiglottis. So mouth of trachea is called glottis. This mouth is called glottis and this is called epiglottis. Epiglottis closes the glottis during food swallowing like this. तो जब आप फूड swallow करते हैं, जब फूड इधर से आता है तो ये जो एपिग्लोटिस है, दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस ड्यूरिंग फूड swallowing, जिससे हमारा जो फूड है वो ट्रेकिया में नहीं जाए, क्योंकि ट्रेकिया में अगर एक बार फूड पार्टिकल चला गया उसके बाद उसमें कोई एग्जिट नहीं है. एनिमल और ह्यूमन बीइंग में डाई. इसलिए हम बोलते हैं जब आप फूड च्यू करते हैं, जब फूड swallow करते हैं, उस समय आप बात नहीं करें, क्योंकि लेरिंग्स जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो ओपन हो जाता है, करेक्ट. एंड दिस इज ग्लोटिस, माउथ ऑफ द ट्रेकिया. दिस इज ट्रेकिया. ट्रेकिया इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप. विंड पाइप सराउंडेड और सपोर्टेड विथ कार्टिलेजिनस रिंग, फ्लेक्सिबल शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग. सो दिस इज ट्रेकिया ventrally like this. There is a cartilaginous ring which protect the trachea from collapsing. So ये क्या करती है, ये जो ट्रेकिया के जो रिंग्स है ये ट्रेकिया को पिचकने से या कोलैप्स होने से रोकती है. देन ट्रेकिया थ्रू दिस रीजन एंटर्स इन चेस्ट रीजन, राइट. चेस्ट में जैसे एंटर करती है, इट डिवाइड्स इनटू टू, इट इज कॉल्ड ब्रेंकियोल, राइट. देन ब्रेंकियोल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स and this is called respiratory tree. So this primary bronchiole divide into secondary bronchiole, secondary bronchiole divide into tertiary bronchiole, tertiary bronchiole divides into intrapulmonary bronchiole, then terminal bronchiole, and the final duct is alveolar duct, which opens into alveolus. So this is alveolus. So alveolus is structural and functional unit of the lungs. Why it is called a functional unit? Because exchange of gases mainly takes place inside the alveolus. इस alveolus में gases का exchange होगा, और alveolus जो है that is surrounded with blood capillaries, ताकि जब exchange होगा तो उन गैस को ट्रांसपोर्ट कौन करे, ब्लड. तो alveolus is surrounded with blood capillaries network. In human being, a pair of lungs are located in thoracic cavity, right? Right lungs is trilobed and left lungs it is bilobed. इसमें 2 लोब है, इसमें 3 लोब है. And there is a notch, this is called cardiac notch, right? Towards left hand side where heart is located. इस region में heart है. Lungs are covered with 2 membrane. Outer membrane is called parietal pleura, inner membrane is called visceral pleura, right? So between both the membrane there is a fluid, it is called pleural fluid, which keeps moist to the lungs, because respiratory organ should be moist. तो इसलिए ये जो pleural fluid है वो उसको गीला रखता है. It also prevent from external shock. फ्लूइड भरा हुआ है तो एक्सटर्नल शॉक से चेस्ट जब आप प्रेस करते हैं तो ये इसको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, प्लूरल फ्लूइड. इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इन दिस लंग्स दैट इज कॉल्ड प्लूरेसी, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स exchange of gases between environment and lungs. This is commonly called breathing, right? तो lungs और environment के बीच में जो gases का exchange है that is called breathing. तो आप देखिए ये मैंने हमारा जो chest region है उसको linearly represent किया है.
So our lungs are located in airtight thoracic cavity, correct? Due to increase or decrease volume of thoracic cavity, ventilation or breathing automatically takes place, correct? अब यहां पर देखिए, see this is chest region, dorsal side, this is back side, or you can say dorsal side, it's lined with vertebral column. तो vertebral column किधर हो गया? Towards dorsal side. ये dorsal side हो गया हमारा. This is called ventral side. ये ventral side है. Ventral side में क्या हो गया हमारा? Sternum. So this is sternum. Sternum bone, sternum, और back side में vertebral column, correct? Lateral side, there is a ribs, 12 pairs of ribs, they make ribs basket. तो lateral side में, this is sternum, laterally there is 12 pairs ribs from sternum to vertebral column. So ribs makes ribs basket. तो lungs are enclosed in ribs basket, 12 pairs ribs. तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहां पे बताया, ये सब रिब्स है, 12 पेयर्स. ये इस एक रिब का हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है. एक रिब का हेड दूसरी रिब के टेल से कनेक्टेड है थ्रू मसल्स, एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल intercostal muscle. There are two types of muscles. So during breathing, during ventilation, external intercostal muscles contracts, correct? So ribs are arranged obliquely first. So when external intercostal muscle contracts, ribs becomes straight. तो जैसे ये ribs obliquely है, जैसे ही ribs सीधा होगा, sternum, this sternum shifted to वेंट्रल साइड, तो ये रिब्स खिसक के यहां आ जाएगा ना. जैसे ये रिब्स यहां पर है, ऐसे ऑब्लिकली है, रिब्स जैसे सीधा होगा, यहां पे देखिए ऐसे ऑब्लिकली है, रिब्स जैसे सीधा होगा तो स्टर्नम यहां से खिसक के आ जाएगा ना. सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिब्स बिकम स्ट्रेट, स्टर्नम मूव वेंट्रल साइड, स्टर्नम आगे की तरफ आ जाएगा. सो यहां से ये स्पेस एरिया, इतना एरिया बढ़ गया. सेम टाइम दिस इज पोस्टरली, देयर इज डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम. दिस इज डोम शेप डायफ्राम. डायफ्राम इज अटैच्ड विद द मसल्स कॉल्ड रेडियल मसल्स. सेम टाइम रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट. तो डायफ्राम जो डोम शेप था, वो डोम शेप की बजाय कैसे हो गया? फ्लैट हो गया. तो डायफ्राम कहां से, यहां से खिसक के यहां आ गया. So I will repeat, during inspiration external intercostal muscle contracts, ribs become straight, sternum move ventral side. Same time radial muscle contracts, diaphragm become flat, and this is called thoracic cavity. So volume of thoracic cavity increase, correct? So when volume of thoracic cavity increase, intrapulmonary pressure or pressure in thoracic cavity decrease in compared to environmental atmosphere pressure. So जैसे इसका प्रेशर ड्रॉप होगा, air rush in through trachea in lungs. So there is a pair of lungs, so air automatically rush in. Right? This is called inspiration. And just opposite of inspiration, there is expiration. There is removal of gases. So क्या होगा? There is a रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये वापस रिलैक्स करेगी. जैसे रिलैक्स करेगी, रिब्स बिकम ऑब्लिक, वापस ऑब्लिक आ जाएगा, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा. स्टर्नम अगेन बैक टू पेवेलियन, स्टर्नम वापस आ जाएगा. सेम टाइम रेडियल मसल्स ऑल्सो रिलैक्स, डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप. तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज, एयर रश आउट. So this is called rush in and this is called rush out. This is called breathing or ventilation, correct? So they are but the main function of breathing, main function in breathing is of external intercostal muscles.
but internal intercostal muscle participate during only forceful breathing. जब आप forcefully breathing करते हैं, then internal intercostal muscle participate. आप forcible expiration करते हैं, then internal intercostal muscle participate. Otherwise normal breathing में सिर्फ external intercostal muscles participate करती है. तो this is all about mechanism of breathing or ventilation. Now next topic is exchange of gases, right? So there is a mainly two principle you to always remember. That first is partial pressure of gases is directly proportional to concentration of that gases, right? जहां पर जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? एक दूसरा, गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. ये दो प्रिंसिपल आप याद रखिए, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. अब आप देखिए, दिस इज एल्वियोलस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, और सिंपली यू कैन से इट इज लंग्स, राइट? सो this is environmental air. Rush in environmental air, oxygen is 21% and carbon dioxide is 0.03%. तो यहां पर दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन की इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm per Hg है, करेक्ट? और CO2 का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर कम है, दैट इज 40 mm पर Hg, करेक्ट? अब इसके बाद देखिए आप, ये ब्लड कैपिलरीज है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स. यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में आया फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन. ये जो ब्लड आया है, तो जो ब्लड लंग्स में आया है, आपको पता है उसमें ऑक्सीजन कम होगी, उसमें CO2 ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर आप कंपेयर करिए, यहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mm. CO2 ज्यादा होगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 46, इससे ज्यादा 46 mm. अगर हम कंपेयर करें एल्वियोलस और पल्मोनरी कैपिलरीज में, दोनों गैसेस के बीच में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 40, पार्शियल प्रेशर O2 इज 100. सो इधर पार्शियल प्रेशर O2 ज्यादा हो गया. तो मैंने अभी आपको बोला, गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली. तो यहां से O2 यहां पर डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि इधर O2 कितना है? 100 mm, यहां कितना है? 40, और यहां CO2 कितना है? 46, यहां CO2 कितना है? 40, तो CO2 इधर डिफ्यूज हो जाएगी. तो ये एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज. सो जैसे यहां से CO2 जाएगी और जैसे O2 यहां आएगी, हीमोग्लोबिन बिकम ऑक्सीजनेटेड, बिकम सैचुरेशन, एंड ब्लड बिकम्स रेड और प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेटेड. Now this oxygenated blood goes to body tissue. Now second exchange between body tissue and tissue capillaries through arteries. अब देखिए, अब यहां से जो ब्लड आया है, इस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, लेकिन ये टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीडेशन होगा फूड का. तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी, न कि O2. तो क्या होगा? यहां पर जो O2 है उसका पार्शियल प्रेशर 100, यहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना? 25 अप्रोक्सीमेटली. CO2 का पार्शियल प्रेशर इन ब्लड कैपिलरीज 40, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर 52, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज से तो ज्यादा ही होगा ना, बिकॉज देयर इज ए ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. तो यहां पर क्या होगा? O2 डिफ्यूज होगा यहां पर टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, टिश्यू कैपिलरीज में, एंड अगेन ब्लड बिकम्स डीऑक्सीनेटेड. दिस इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू due to difference in partial pressure of gases. Now this deoxygenated blood again goes to lungs for purification. So this is exchange between alveolus and pulmonary capillaries, body tissue and tissue capillaries, correct? So after exchange, the next step is transportation of gases. So in our body, mainly there are two gases, oxygen and carbon dioxide. So oxygen transport from lungs to body tissue, right?
So oxygen transport into two form. 3% oxygen transport from lungs to body tissue in the form of dissolve in plasma, 3%, and 97% oxygen transported in the form of oxyhemoglobin. So one molecule of hemoglobin carries 4 molecule of oxygen from lungs to tissue. And another transportation is कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये क्या होगा, ये बॉडी टिश्यू से लंग्स की तरफ. सो 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसोल्व होकर चलती है. कहां से? टिश्यू से लंग्स की तरफ. 7%. इन प्लाज्मा मेनली देयर इज अ वाटर. सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व इन वाटर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 7%. 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी कार्ब अमीनो कंपाउंड की फॉर्म में. सो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. सो उस अमीनो एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है और टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है. कितना परसेंट? 23%. और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो वो कहां से होगा? वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. कहां से? टिश्यू से लंग्स में. तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. सो नाउ अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. सो आप देखिए ये बॉडी टिश्यू है, ये ब्लड कैपिलरीज है, टिश्यू कैपिलरीज आप बोल सकते हैं. यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है, राइट, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर. तो आप देखिए यहां पर सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो टिश्यू, ये जो ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन लेके आया है हीमोग्लोबिन. तो आप देखिए हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन. तो जैसे ही ये ऑक्सीमोग्लोबिन बॉडी टिश्यू पर पहुंचता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ऑक्सीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू, राइट. एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ऑक्सीडेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा है, हमने पहले डिस्कस कर लिया. ये कहां डिफ्यूज हो जाएगी? आरबीसी में, थ्रू प्लाज्मा. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में. तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू आरबीसी में एंटर करेगी CO2. तो ब्लड प्लाज्मा में आप जानते हैं प्लाज्मा में वाटर है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाएगी? H2CO3, कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी हमने बात किया 7% कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, राइट. फिर उसके बाद देखिए आप, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करती है आरबीसी के अंदर, फ्री हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, फ्री हीमोग्लोबिन अटैच विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्ब अमीनो कंपाउंड. यू कैन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. कितना? 23%. यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, ये सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी टुवर्ड्स लंग्स. 7% कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके बाद देखिए आप, आरबीसी में प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें पानी है, उस वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है एंड अगेन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. बट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अनस्टेबल कंपाउंड, करेक्ट. देयर इज ये अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इट डिवाइड्स इमीडिएटली, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन. दिस कार्बोनेट आयन डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा. नाउ आरबीसी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. पहले तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों बैलेंस था, लेकिन जब इसमें से बाइकार्बोनेट आयन यहां से निकल के बाहर प्लाज्मा में आ गया तो आरबीसी के ऊपर तो प्लस चार्ज रहेगा ना. टू न्यूट्रलाइज आरबीसी, क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा शिफ्टेड टू आरबीसी, करेक्ट. एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट.
यहां से ये जो क्लोरीन बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर गया, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट टू बैलेंस द चार्ज ऑफ द आरबीसी, करेक्ट। सो ये बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, देन बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन and form sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. So now this carbon dioxide in the form of bicarbonate, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स लंग्स। अब आप देखिए जैसे ही लंग्स में पहुंचता है 3 फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। जब ये लंग्स में पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में कम है इन कंपेयर टू पल्मोनरी कैपिलरीज। सो देखिए आप, ये सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगेन ब्रेक डाउन इनटू सोडियम पोटेशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट एंटर्स इन आरबीसी अगेन। आरबीसी में जैसे एंटर करता है उसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन पहले से दोनों रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डिवाइड्स इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ दी मॉलिक्यूल कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिफ्यूज इनटू एल्वियोलस। तो एल्वियोलस में पानी भी जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाएगी, करेक्ट। फिर दूसरा देखिए आप, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आया है ये भी ब्रेक डाउन होगा, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, यहां से ऑक्सीजन वापस अंदर आरबीसी में एंटर करेगी, ये हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगा एंड अगेन इट फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो फ्री हीमोग्लोबिन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया था, अब ये जाते वक्त किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो अब आप देखिए क्योंकि यहां पर बाइकार्बोनेट आयन वापस अंदर एंटर कर गया नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें जो पहले क्लोराइड आयन आया हुआ था नेगेटिवली चार्ज, ये रिवर्स बाहर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, करेक्ट। सो इन द 3 फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड एंड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से लंग्स की तरफ होता है एंड दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. Now, oxyhemoglobin dissociation curve, correct? So this oxyhemoglobin curve is plotted between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin, or you can say formation of hemoglobin and between partial pressure of oxygen. हम दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस ग्राफ इज सिग्मोइड, एस शेप सिग्मोइड ग्राफ आपको मिलता है, करेक्ट। इट मींस अगर आप इस ग्राफ को यहां से देख रहे हैं, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। तो हम भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ HbO2 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, करेक्ट। मैक्सिमम, अब आप इसको देखिए, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम 100 mm/Hg है, तब हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेट हो रहा है, 97%। हमने पहले बोला ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम 97% होता है इन द फॉर्म ऑफ HbO2। तो ये 97% HbO2 आपके पास बनता है, करेक्ट। लेकिन इस समय पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और CO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेल में यहां पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, इफ पार्शियल प्रेशर बिकम्स 20 mmHg, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये जो कर्व है आपका वो यहां से खिसक के यहां आ जाएगा। आप इसको बैक में लेंगे, जब आप इसको बैक में लेंगे तो HbO2 कितना रह गया, 80%। इट मींस जब आपका CO2 0 है तो HbO2 97% है, लेकिन जब आपका PCO2 20 mm होता है, आपका HbO2 कितना रह गया, 80%। इट मींस 70% मॉलिक्यूल ऑफ HbO2 डिसोसिएटेड साइमल्टेनियसली। फिर देखिए आप, अगर आपका PCO2 30 हो गया तो आपका ग्राफ कहां पर आ गया, यहां पर आपका HbO2 कितना रह गया, 70%। इट मींस आपके और 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए
HbO2 के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे PCO2 इंक्रीज होता है वैसे वैसे HbCO2 डिसोसिएट होता है 97 से 80, 80 से 70। तो हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCO2। जैसे जैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ेगा सेल में HbO2 डिसोसिएट होता जाएगा। किसमें होगा डिसोसिएशन? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो अब आप देखिए यहां पर, देखिए आप, ये ग्राफ पहले यहां था जब PCO2 0 है, ये ग्राफ यहां पे आ गया जब PCO2 20 है, ये ग्राफ यहां पर आ गया जब PCO2 30 है। इट मींस आप इसमें देखिए व्हेन PCO2 increases, our sigmoid curve shifted towards right hand side and this phenomena is called Bohr's effect, correct? जैसे जैसे कह सकता है इसको हम बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट HbO2 डिसोसिएशन कर्व।